Good morning, students. Let's continue our chapter How Plants Make Food. In the part 1 of this chapter, we studied about that how plants make their food. In this video, we will discuss the parts of leaf and the use of the food. So let's start the video. First, we will discuss the parts of a leaf. Students, you all know that leaf is the green part of the plant, and here the food is prepared. The leaf has two main parts. First one is leaf blade, which is also known as lamina. Second one is leaf stalk, which is also known as petiole. So leaf has the two main parts, leaf blade and leaf stalk. The flat or broad part of the leaf is called the leaf blade. You can see in this picture that the flat part of the leaf, आप सभी ने देखा होगा leaf का flat part, जो चौड़ा part होता है, that is known as the leaf blade. Okay. The leaf is attached to the stem of the plant with a stalk. Here you can see the leaf is attached to the stem with the help of a stalk. This is known as leaf stalk or leaf petiole. तो लीफ स्टॉक क्या है? वो पार्ट जो लीफ ब्लेड को स्टेम के साथ अटैच करता है. If you see a leaf, you observe main vein in the middle of a leaf. You can see in this picture that there is a main vein, dark green colored vein. एक सीधी लाइन जा रही है डार्क ग्रीन कलर की. And there are also some small veins coming out of this main. जो सेंटर में मिडल में एक डार्क ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, उससे साइड में बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस जा रही है. दे आर नोन एज द स्मॉल वेन्स which are coming out of the main vein. The central main vein is called midrib. Yes, the central main vein is midrib because it is present in the middle of the leaf. So it is midrib, which extend from the base of the blade to its tip. ये जो midrib है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? लीफ के बेस से लेके टिप तक जाती है. And it is present in the middle of the leaf. लीफ के मिडल में प्रेजेंट है ना, सेंटर में. So it is midrib. The side veins are the tiny pipelines. You can see in this picture जो साइड में वेन्स जा रही हैं वो क्या है? छोटी छोटी पाइपलाइंस की तरह होती हैं. That arise from the midrib. जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? मिडरिब से. The veins have two pipeline. जितनी भी वेन्स हैं उनमें टू पाइपलाइन होती हैं. First one is, one pipeline is used to bring water and minerals to the leaf from the stem. आप सभी को पता है जब भी आप किसी प्लांट्स को वाटर देते हैं तो कहाँ देते हैं? रूट्स में. अब रूट से वाटर कहाँ जाता है? स्टेम में. और स्टेम से कहाँ जाएगा? लीफ में. तो एक जो ये पाइपलाइन जा रही है दैट इज यूज टू ब्रिंग द वाटर एंड मिनरल टू द लीफ. कहाँ से? फ्रॉम स्टेम से, क्योंकि स्टेम के साथ अटैच्ड है लीफ. ओके. एंड सेकेंड जो पाइपलाइन है, द अदर पाइपलाइन दैट टेक्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीफ. फूड कहाँ बन रहा है? लीफ के अंदर. लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना हमने, फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द लीफ. अब यहाँ से जो फूड बना है, चाहिए तो पूरी प्लांट बॉडी को, तो वहाँ से सारी प्लांट बॉडी में जो फूड जाएगा दैट इज टेकन बाय द अदर पाइपलाइन. Here you can see the parts of a leaf. This is the complete structure of the leaf. बच्चों जो leaf है that is attached to the stem by a structure, stalk-like structure known as the petiole. This brown color is of stem and then a stalk-like structure is present which is known as petiole. After that the leaf is present. Which part of the leaf? Leaf blade or leaf lamina. It is the flat part of the leaf, and in the center of the leaf or in the middle of the leaf what is present? Midrib is present. Okay, जो सेंटर में लाइन जा रही है that is known as the midrib. अब midrib से बहुत सारी वेन्स जो है वो साइड की तरफ जा रही हैं.
दीज आर नोन एज द वेन्स, जो मेन वाइट कलर की लाइंस जा रही हैं। अब आगे जो वेन्स हैं वो आगे और छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो रही हैं, विच आर नोन एज द वेन्यूल्स, एंड द टिप is known as the leaf tip. So this is the complete structure of the leaf. Next is the inside of a leaf. कि लीफ के अंदर क्या है। ये तो हमने पढ़ा कि लीफ बाहर से कैसा दिखता है, इंटरनली भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है। जैसे हमारी बॉडी के बाहर पे कुछ और दिखता है, अंदर कुछ और है, ऐसे ही लीफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू कट ए थिन स्लाइस ऑफ द लीफ, अगर आप लीफ को उसकी थिन स्लाइस कट करते हैं एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, यू कैन सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स। उसके अंदर बहुत सारी सेल्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। द सेल्स ऑफ अपर एंड लोअर लेयर आर नॉट ग्रीन, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और सबसे नीचे वाली लेयर होती है, उनकी जो सेल्स हैं दे आर नॉट ग्रीन। The cells of the middle layers are green. जो बीच वाली सेल्स की लेयर होती है they are green. Why they are green? Due to chlorophyll. डिस्कस किया था ना हमने, chlorophyll is the green pigment, and this chlorophyll that trap the sunlight and makes food for the plant. The lowest layer of the leaf has tiny pores. जो लीफ की लोएस्ट सबसे नीचे वाली लेयर होती है that has the tiny pores. छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहां पर, एंड दीज पोर्स आर नोन एज द स्टोमेटा. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द स्टोमेटल पोर. दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. फोटोसिंथेसिस में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना एयर से. सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय द स्टोमेटा, एंड दिस इज यूज्ड बाय द लीफ टू मेक फूड. The plants breathe air in. अंदर एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, एंड आउट थ्रू दीज स्टोमेटा. इन्हीं स्टोमेटा से वो एयर अंदर भी लेते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं. नाउ हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड. हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स फूड बनाते कैसे हैं, अब वो उसको यूज कैसे करते हैं. During the process of photosynthesis, the food that the leaf prepare is a kind of sugar called glucose. Photosynthesis में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, फूड बनता है. अब लीफ जो फूड बनाता है that is a kind of sugar, वो एक तरह की शुगर होती है. And what is the name of that sugar? Glucose. Plants use this food in the following ways. अब फूड बन गया. हम भी जो फूड खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो फूड अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी ये जो फूड बनता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए ये फूड यूटिलाइज होता है. फर्स्ट वन इज ए पार्ट ऑफ फूड इज बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी. जो फूड बना है उसका कुछ पार्ट बर्न हो जाता है ताकि प्लांट को एनर्जी मिल सके. जैसे हमें भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी वो फूड बर्न होता है और उसे एनर्जी मिलती है. ए पार्ट ऑफ फूड इज यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी फूड रिक्वायर्ड है, ठीक है. ऐसे ही प्लांट्स की बॉडी की ग्रोथ के लिए भी फूड रिक्वायर्ड है. ए पार्ट ऑफ फूड इज यूज फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल एंड टिश्यूज. हमारी बॉडी के अंदर भी पुरानी सेल्स उनकी टूट फूट होती है, कहीं हमें चोट लगती है तो वहाँ पर रिपेयर होता है. ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी जो टूट फूट होती रहती है वहाँ पर जो रिपेयर होनी है, फॉर दैट ऑल्सो फूड इज रिक्वायर्ड. तो कुछ पार्ट जो है फूड का दैट इज यूज फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल. एक्स्ट्रा फूड इज चेंज्ड इनटू स्टार्च. जो एक्स्ट्रा फूड है, हम लोग भी जो फूड खाते हैं, अब हम लोग फूड खाते हैं उसके बाद हम लोग कुछ घंटे की गैप के बाद नया फूड खाते हैं, ठीक है. हम लोग फास्ट भी करते हैं. अब जब हम लोग फास्ट करते हैं तब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है. जब हम लोग फास्ट रखते हैं उस टाइम पर वो स्टोर्ड फूड जो है दैट इज यूटिलाइज्ड, हमें उससे एनर्जी मिलती रहती है. ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी जो एक्स्ट्रा फूड होता है दैट इज चेंज्ड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट.
प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो स्टोर हो जाता है। कौन से पार्ट्स में? लाइक लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड्स। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं। वी यूजुअली ईट दोज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट विच हैव फूड स्टोर्ड इन देम। हम प्लांट के उस पार्ट को खाते हैं दैट पार्ट ऑफ द प्लांट इज एडिबल विच स्टोर फूड इन देम। सपोज किसी प्लांट का हम फ्रूट खा रहे हैं, इट मीन्स उसके फ्रूट के अंदर फूड स्टोर है। लाइक दिस फ्रूट्स, मैंगो एंड ऑरेंज। मैंगो और ऑरेंज के केस में क्या है? फ्रूट के अंदर फूड स्टोर हो रहा है, दैट्स वाई दैट पार्ट इज एडिबल। शुगर केन के केस में स्टेम के अंदर फूड स्टोर हो रहा है, तो शुगर केन का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? स्टेम। कैरेट, रेडिश, इन दैट केस रूट इज द एडिबल पार्ट। हम जो पार्ट खाते हैं दैट इज रूट बिकॉज द फूड इज स्टोर्ड इन द रूट। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर के केस में क्या है? फूड कहाँ स्टोर होता है? इन द फ्लावर, सो फ्लावर इज द एडिबल पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट पीज एंड बीन्स, इस केस में फूड कहाँ स्टोर होता है? इन सीड्स, सो देयर सीड्स आर एडिबल। स्पाइनेच एंड कैबेज, इन दैट केस लीव्स आर एडिबल। स्पाइनेच की लीव्स खाते हैं ना हम, so in that case leaves are edible because the food is stored in the leaves. And potato and onion, potato और onion का जो पार्ट हम खाते हैं that is the underground stem. potato और onion कहाँ ग्रो करते हैं? नीचे की तरफ, so हम we eat the underground stem of potato and onion. Next is some unusual plants. Students, we have discussed about the green plants. अब तक हमने जो पढ़ा that is all about the green plants, कि green plants किस तरह से food synthesize करते हैं, किस तरह से store करते हैं, but always there are some exceptions, कुछ ना कुछ exceptions होती हैं। तो plant के केस में भी कुछ exceptions होती हैं, like cactus plant, it does not have the leaves. आपको जो उसकी leaves दिखती हैं actually they are not the leaves. जो आपको कांटे दिखते हैं, spines दिखते हैं, they are the leaves. और जो आपको लीफ दिखता है that is actually the stem part. It has thick and fleshy green stem. It makes its food in its fleshy stem. उस stem के अंदर food बनता है because that is green and it form the food by the process of photosynthesis. Some plants like crotons has colorful leaves. These plants do have the green color. Green color तो होता है but that is hidden by the other color. वो उसके ऊपर कोई और कलर भी होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर जो है दैट इज हिडन बाय द अदर कलर। प्लांट्स लाइक डोडर, डोडर विच इज कॉमनली नोन एज अमरबेल, इट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स। अमरबेल अपना फूड खुद नहीं बना सकती, इट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर ग्रीन प्लांट, ये उनसे अपना फूड लेती है। नेक्स्ट इज द मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो गले सड़े प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वहां से ये अपना फूड लेते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स both are interdependent or interrelated to each other. Plants animals पर depend करते हैं, animals plants पर depend करते हैं। How? Plants and animals depend on each other for their survival. Plants need carbon dioxide to make their food. Plants को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपने फूड को बनाने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? Animals breathe out carbon dioxide which is used by the plant. हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? मैंने आपको बताया था, फूड एंड ऑक्सीजन, एंड दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल्स। सो दिस इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड लिव टुगेदर। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और वो इकट्ठे ही सर्वाइव करते हैं।
Next is the balance in nature. A balance between the number of plants and animals is necessary in nature. Students, नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनिमल्स, अगर एनिमल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल एनिमल्स. प्लांट्स कम होंगे, एनिमल्स बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? प्लांट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा एंड सभी एनिमल्स को फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करना. एंड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स बढ़ जाएंगे, एनिमल्स कम रहेंगे, देन एनिमल्स में नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स फॉर देयर फूड मेकिंग प्रोसेस. अब प्लांट्स बहुत सारे होंगे तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सारी चाहिए. एनिमल्स कम हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो उनके लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए हमें क्या चाहिए? एक बैलेंस चाहिए दोनों के बीच में. टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. तो एक नेचर के अंदर एक बैलेंस बना के रखने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है. अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ बोली गई, क्या? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इन फॉरेस्ट रिजर्व एंड सेंचुरीज. 1972 में ये एक्ट स्टार्ट हुआ था. तो उन्होंने क्या कहा कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. कहाँ? फॉरेस्ट रिजर्व्स में और सेंचुरीज में. वहाँ पर हम क्या करते हैं? उन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एनिमल्स को सेव कर सकते हैं. वन महोत्सव that is celebrated in our country every year for a week. During this week, a large number of trees are planted. हर साल इंडिया के अंदर 1 वीक के लिए जुलाई में स्पेशली वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है. अब उस महोत्सव में हम क्या करते हैं? बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट करते हैं. तो ये जो दो हमारी इश्यूज़ हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को मेंटेन करके रखने के, उनको बैलेंस करके रखने के लिए, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. So we can say, if the man wants to survive on the earth for a long time, अगर हम इस अर्थ पर लंबे समय के लिए सर्वाइव करना चाहते हैं, he must maintain a balance in nature. अगर हम नेचर में बैलेंस बना के चलेंगे तो हम लोग भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे. So students, this was all about this video. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.